انور جلال پوری صاحب کی. میرا ہر شعر حقیقت کی ہے زندہ تصویر، اپنے اشعار میں قصہ نہیں لکھا میں نے. اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب اطہر حسین صدیقی صاحب سے کہ اس موقع پر آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اطہر حسین صدیقی صاحب جو کہ دانشور ہیں تشریف لائے اور اس موقع پر اپنی بات کریں. آصف فاروقی صاحب سے جناب منیش شکلا صاحب، ڈاکٹر ارشد ناہی صاحبہ، ڈاکٹر احتشام احمد خان صاحب، جناب عاطف حنیف صاحب، اطہر حسین صدیقی صاحب، سبھی لوگ آگے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ یہ تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ جو پروگرام کا ہے باقاعدہ طور پہ سیمینار کا جو ہے آغاز ہو سکے. آصف فاروقی صاحب سے درخواست ہے، جناب منیش شکلا صاحب سے، ڈاکٹر ارشد ناہی، ڈاکٹر احتشام احمد خان، جناب عاطف حنیف صاحب، اطہر حسین صاحب جو مائک پہ ہیں، سبھی لوگ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. اور اب اس کے بعد ڈاکٹر ارشد ناہی صاحبہ بھی اپنی مقالے کو پیش کریں گی، لیکن قبل اس کے کہ وہ مقالہ پیش کریں گے اطہر حسین صدیقی صاحب مائک پہ ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت بہت شکریہ. ہیلپ یو ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ جنہوں نے یہ آج کا نشست ہے اس کو انہوں نے آرگنائز کیا. خاص طور سے ہرش وردھن جی کا بہت بہت شکریہ. اور آج انور جلال پوری صاحب جن کی 76ویں یوم پیدائش، اس موقع پہ جو تمام یہاں پہ آج پروگرام رہے جس میں دنیش شرما جی جو سابق چیف منسٹر تھے ان کی جو باتیں رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ غزل کی نشست رہی، اور اس تمام باتوں میں اور یہاں پہ جتنے بھی اسپیکرز ابھی تک آئے جو بات کی گئی کہ انور جلال پوری صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک شخصیت ہے. اور خاص طور سے اگر ہم ان کا جو کہا جائے جو ایز اے ماہر میں کہوں گا کہ تمام زبانوں میں چاہے وہ گیتانجلی جس کا انہوں نے ترجمہ کیا جو بنگالی لینگویج میں ہے گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور دوارا کمپوزیشن، اس کو اردو میں، پھر بھگوت گیتا جن کا انہوں نے ترجمہ کیا اردو شاعری میں، اسی طرح باب خیام جو پرشین لینگویج کو انہوں نے اس طرح سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، پھر ایسے ہی قرآن شریف کی تیسرا پارہ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، اور خود میں وہ انگریزی کے ایک ماہر تھے. تو جو بات جس کو آج ہمارے اقدامات کر رہے ہیں نصیر الدین صاحب نے رکھی کہ میرا ہر شعر حقیقت کی ہے زندہ تصویر، اپنے اشعار میں قصہ نہیں لکھا میں نے. یہ انور جلال پوری صاحب کا میں کہوں گا کہ جو اگر ہم زندگی کو دو پہلو میں کریں، ایک پبلک لائف ہوتی ہے اور ایک پرسنل لائف، تو یہ سب سے اچھی طرح ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو یہ اشعار جو ہے ڈپکٹ کرتا ہے. اور اس میں جو ان کا سفر رہا، جو چاہے وہ ایک پیدائش سے لے کے جو جب ایک ورکنگ لائف میں آیا، خاص طور سے انہوں نے چار نریندر کالج میں ایز اے لیکچر جوائن کیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 20 یا 22 سال کے رہے ہوں گے. انہوں نے مرزا غالب 1969 میں جو بھی عمر رہی ہوگی تو 22 سال کے رہے ہوں گے. اس وقت انہوں نے یہ دانشوری تھی کہ میں ایسا ادارہ قائم کروں اس جلال پور میں جو اس وقت کافی پچھڑا علاقہ تھا تعلیم کے اعتبار سے. تو اس میں وہ جو ایک اس کا جو معیاری لیول کو آج یہاں تک پہنچایا تھا. میرا جو سب سے پہلے تعلق ہے اسی سلسلے میں. اس وقت ان کے جو پرنسپل صاحب ہوتے تھے ان سے ہمارا پہلے سے تعلق تھا، وہ آتے تھے اور ہماری کئی ملاقاتیں تھیں. تو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں وہیں انور صاحب، میں جانتا تھا کہ بہت بڑے شاعر ہیں. تو میں پہلی بار میرا اس چیز سے واسطہ ہوا کہ ان کا ایک ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے مطلب کہا جائے میں اس وقت نام کو بھول رہا ہوں، شاہکار ہے ہمیں بتا دیں، پرنسپل صاحب اس سے پہلے تھے منیر صاحب سے میرا اب شاید ریٹائر ہو گئے ہیں.
तो उस सिलसिले में जब बातें हुई तो बहुत लंबी मेरी उनके साथ गुफ्तगू रहती थी। मैं भी लखनऊ के कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में काफ़ी एक्टिव था, जिसमें एक मुमताज़ कॉलेज वगैरह, तो एक मेरा भी कहा जाए कि कोशिश मुस्तकिल रहती थी कि मैं कैसे इन इदारों को बेहतर करूँ। तो उनकी जितनी भी गुफ्तगू थी, चाहे क्वालिटी एजुकेशन को लेके, और उन्हीं गुफ्तगू में एक चीज़ उन्होंने उस वक्त तय करी, कहा कि हम क्यों ना ऐसा करें जैसे और इदारे होते हैं इसी लेवल के स्कूल, जिसको हम मिशनरी स्कूल कहते हैं। तो उनका जो असल क्वालिटी को एक बढ़ाने का जो तरीका होता है कि उनका हर साल का एक एकेडमिक कैलेंडर बना होता है, और उस एकेडमिक कैलेंडर के तहत वो अपने टीचर्स में उसकी मॉनिटरिंग करके उसको करते हैं। तो उस पर उन्होंने फौरन, मैं समझता हूँ उस वक्त कहा कि मैं अभी से कहता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उन्होंने इस पर काम किया। तो ये एक, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिनका इतना मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, तो कितनी माइन्यूटली जिस चीज़ के साथ वो जुड़े थे, तो उसके साथ उनका कितना उस पर अमल करना और उस चीज़ को आगे बढ़ाना, वो उनको बताता है। बाकी तो जो चीज़ें उनकी पब्लिक लाइफ में जो उन्होंने काम किया, खासतौर से इस हिंदुस्तान की जो सेकुलरिज्म है, जो यहाँ का कहा जाए कि एक गंगा जमनी तहजीब, क्योंकि वो अवध के थे, तो एक अवध के रहने वाले में ज़्यादा मैं समझता हूँ उस चीज़ की एक वो होती सलाहियत कि कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं। तो उनका जो एक खास इस सिलसिले का जो एक शेर है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपको कि तुम प्यार की सौगात लेकर घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। ये उनकी लाइफ की फिलॉसफी थी। तो मैंने पहले वाले उसका जो मैं बताना चाहता था, लंबे उसमें अगर वक्त होता तो मुझे भी जाना, आप लोग बहुत काफ़ी है। तो ये दो मैंने उनकी लाइफ के पार्ट उनको करा है कि पहली जो उनकी पर्सनल लाइफ का जो कैरेक्टर है, वो पहले अशार कि वो जो भी करते थे, जो जिंदगी है उसमें कोई किस्सा नहीं है, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और ये बात जो है, ये पूरी तरह से उस फिलॉसफी को उनकी पूरी उनकी राइटिंग्स में जो मैं समझता हूँ, जो अगर उसका हम फिलॉसफिकल वो करें, यहाँ काफ़ी लिटरेरी क्रिटिक्स की हैसियत से तमाम लोग हैं, प्रोफेसर दाएँ, तो ये इनकी ज़िंदगी का फलसफा है, और उसको ने बाखूबी निभाया। और अपने जितने भी उनके कहा जाए लिटरेरी वर्क हैं, और आज का जो आपके सेमिनार का अनुमान है, मोहब्बत का सफ़ीर, जिस नाम का आपके हेल्प ट्रस्ट में पब्लिक किताब भी पब्लिश की है, तो वो मैं समझता हूँ कि उनके लिए अगर कहा जाए कि एक अल्फाज में, एक फ्रेज में उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनकी ज़िंदगी का कंट्रीब्यूशन वो मोहब्बत के सफ़ीर, और वो किसी के कहने से या उससे मैं कहूँगा कि जो भी उनका वर्क है उसका कंपाइलेशन हम अगर पब्लिक डिस्कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। हेल्पिंग ट्रस्ट उस पर बहुत काम कर रहा है, और मैं उसका बहुत बहुत कहूँगा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से अनवर जलालपुरी साहब को उस पब्लिक डिस्कोर्स में वो लाए हैं, वो उसके लिए उनके जितना भी तारीफ की जाए और इसको जितना भी बढ़ाया जाए, इस मोहब्बत का जो सफ़ीर का जो उनका एक सफ़र है, जो पूरी ज़िंदगी का, उसको हम आवाम तक कितना पहुँचा पाए, तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले हमारे निज़ामत कर रहे हैं उनसे इजाज़त ले ली थी कि मुझे खैर मैं अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँगा कि मैं नहीं रुक पाऊँगा, बट मैं चाहूँगा कि ये जो सेमिनार है, यहाँ से कुछ भी फाइनल इस सिम्पोजियम का जो भी डिस्कशन का वो निकलेगा पेपर का फाइनल, तो उसको भी कंपाइलेशन होगा, तो मैं उसका हिस्सा रहना चाहूँगा। कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसमें हेल्पिंग ट्रस्ट के साथ, इस मैसेज के साथ, जो मोहब्बत का सफ़ीर, उस सफ़र में मैं भी शामिल होना चाहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना किसी ताख़ीर के मैं दावत देता हूँ डॉक्टर इशरत नाही साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस, दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाए और अपना मकाला पेश करें।
شروع کے بنا میں خدائے تعالیٰ یہ وہ مہربان ہے بڑا رحم والا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اس سیمینار کے آیوجک ہیلتھ یو ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اراکین بطور خاص ہرش وردھن جی کو کہ جنہوں نے ایک ایسے سخت وقت میں جب ملک میں قومی یکجہتی کے جذبے کو جگانے کی بہت ضرورت ہے، اپنی سانجھی سانسکرتک وراثت کو سنجونے کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں امن کی پیامبر شخصیت گنگا جمنی سنسکرتی کے سچے رکشک پر سیمینار کا آیوجن کر یہ ثابت کر دیا کہ کتنی ہی باتیں سموم چلے محبت کے نغمے گانے والے کم نہ ہوں گے. ساتھ ہی شکرگزار ہے کہ مجھے اس کا حصہ بنایا. میں تمام اسٹیج پر تشریف فرما معززین، نظامت فرما رہے مسیح الدین خان صاحب اور ذوق ادب سے معمول اہل لکھنؤ. میرے مقالے کا عنوان ہے دور جدید کا صوفی گیتا کا مترجم انور جلال پوری. انور جلال پوری جدید دور کے خالص ہندوستانی صوفی ہیں جو ہمہ جہت شخصیت کے مالک، بالکل قوس قزح کی طرح شاعر، ناظم، مضمون نگار، مترجم، ماہر زبان، بے باک مبصر، اتحاد کے شیدائی، سماج کے استحصال شدہ طبقے کے ترجمان، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والے اور ان سب سے بڑھ کر امن دوستی کے پیغمبر تھے. انہوں نے جب ترجمہ کا ارادہ کیا تو مقدس کتاب گیتا کے پیغام کو بھی اردو میں منظوم شکل دی اور اسے اردو شاعری میں گیتا نغمہ علم و عمل کا نام دیا اور اردو کے قالب میں یوں ڈھالا کہ یہ ترجمہ گیتا کا پیغام پڑھنے والوں کی روح کو ٹھیک اسی طرح سرشار کر گیا جس طرح کی پیشن گوئی پدم بھوشن ڈاکٹر گوپال داس نیرج نے کی تھی. ڈاکٹر گوپال داس نیرج لکھتے ہیں کہ میں انور صاحب کو اس کارنامے کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں کہ جس دن یہ ترجمہ شائع ہو کر آئے گا تب لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور ساتھ ساتھ گنگنائیں گے بھی، جس کا مظاہرہ ہم نے ابھی دیکھا. انور جلال پوری نے ترجمے کے لیے گیتا کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال جب ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب بھی ان کی تحریروں میں دکھائی دینے لگتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی تو یہی کہ وہ ملک کے ذرے ذرے سے محبت کرنے والے انسان تھے. دوسرے، وہ ہر مذہب کی کتاب کو مذہب کا پاٹھ پڑھانے والی کتاب کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ انسانیت کا درس دینے والا صحیفہ مانتے تھے. تیسری وجہ ملک کی ملی جلی ثقافت، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی انہیں گیتا سے لگاؤ پیدا ہوا اور اس حد تک کہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا موضوع ہی گیتا کو بنا لیا، مگر انہی وجوہات کی بنا پر وہ اس تحقیقی کام کو آگے نہ بڑھا سکے. انور جلال پوری کتاب کو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور تمام عالم کے امن پسندوں کے نام کر دیتے ہیں. ان کا یہ انتصاب ہی ان کے سوچ کے دائرے کی وسعت کو بتاتا ہے. اس کے بعد وہ گیتا کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ قطعہ درج کرتے ہیں جو یہاں پر پہلے بھی کہا گیا کہ ہے یوگ والے کرشن جہاں، جہاں پر ہے ارجن کے تیروں کماں، وہیں فتح مندی مسرت وہیں، سبھی کے لیے شان و شوکت وہیں. انہوں نے گیتا کے 700 شلوکوں کا اردو کے 1761 اشعار میں ترجمہ کیا اور اس ترجمے کا دورانیہ 2008 سے 2013 تک رہا. اس طویل عرصے میں انہوں نے گیتا کو پڑھا، اس پر غور و فکر کیا اور اس عمل کے دوران انہوں نے مہا بھارت کا بھی گہرا مطالعہ کیا اور تاکہ وہ ان عوامل کو جان سکیں جس کی وجہ سے گیتا کے اپدیش وجود میں آئے. انہوں نے اس چیز کو جانا کہ ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف حق مارنے والے نافرض شناس جو کہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. حق اور حق تلفی کے درمیان کی تلخیاں اس مقام پر پہنچی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی. کروکشیتر میں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں لیکن ارجن تھے کہ اپنے اندر تیر کمان اٹھانے کی سکت نہیں پا رہے تھے. ارجن کا باطن شدید کشمکش کا شکار تھا کہ خون بہاؤں تو کس کا، ہر صورت میں زمین تو میرے ہی خاندان کے لہو سے سرخ ہوگی. تب کرشن جی جو ان کے ساتھی تھے انہیں زندگی کا وہ عظیم فلسفہ سمجھاتے ہیں جسے دنیا گیتا کے نام سے جانتی ہے. گیتا میں انور جلال پوری نے گیتا کے پیغامات کو بہت اچھی طرح سمجھا، لفظ لفظ کی تفہیم کو ذہن نشین کیا، پھر قدم منظوم ترجمے کی طرف بڑھائے تھے. گیتا میں کل 18 ابواب ہیں جنہیں
तर्जुमे में बड़े ही खूबसूरत उन्वानात के साथ सजाया गया है। और जब पहला बात जो है अर्जुन की उदासी के उन्वान से है, जिसमें वो अपनों को नहीं मार सकने और उन्हें मारने का कदम बढ़ाने को एक गुनाह तस्वुर करते हैं और कहते हैं कि मेरी रूह जान ए मेरे कारसाज, नहीं मुझको मालूम क्या है ये राज। यहाँ पर तो आसार बेहतर नहीं, मैं मैदान में हूँ घर के बाहर नहीं, मैं अपनों पे कैसे उठाऊँ धनुष, बुजुर्गों पे क्या आजमाऊँ धनुष। ये सब मेरे कुनबे के अफराद हैं, सभी के मुझे नाम तक याद है। मेरे आका मुझको बता दीजिए, मेरी उलझनों को मिटा दीजिए। इस बात को पढ़ने पर लगता है कि अर्जुन तो किसी भी तरह जंग के लिए आमादा नहीं थे। तब दूसरा बाब इल्म के फलसफा के उन्वान से जो कलमबंद किया गया है, उसमें कृष्ण अपनी ज़बान से जो पैगाम अदा करते हैं वो कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ए अर्जुन, हवाओं का रुख मोड़ दे, ये नामर्दी और बुज़दिली छोड़ दे, शरीक इसमें हो धर्म का युद्ध है, ये तेरे मेरे कर्म का युद्ध है, मुकद्दर में तेरे लिखी जंग है कि फितरत में 100% जंग है, मुनासिब नहीं इससे मुंह मोड़ना, यही शक्ति की तो है कामना, तेरे वास्ते पुण्य का काम है, तू अब ऐसा है जो कि बेदाम है। अनवर जलालपुरी को जुबान पर पूरी दस्तरस हासिल है और वो वहदतुल वजूद का जब वो फलसफा बयान करते हैं तो कहते हैं कि वो एक ज़ात जो खालिक़े कायनात, वो एक ज़ात जो मालिके शहजहात, उसी के तो जलवे हैं चारों तरफ, उसी के करिश्मे हैं चारों तरफ। फना से परे तो वही ज़ात है, सदा जो रहे वो तो वही ज़ात है। इसी के साथ वो रूह के आवागमन को भी बयान करते हैं और फिर जो ख़ास तौर पर गीता का ज्ञान है, जो कर्म का फलसफा है, अमल का फलसफा है, ये गीता का सबसे अहम बाब है जिसमें इंसानों को कर्म की तरगीब दी गई है। गीता ही एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जो तर्क दुनिया पर कर्म को फ़ौक़ियत देती है और अमल भी वो जो इंसानियत के लिए किया गया हो। वो कहते हैं कि अमल से जो दुनिया में है बेखबर, नहीं कर्मों पर जिसकी कोई नज़र, समझ ले वो आज़ाद इंसान नहीं, किसी हाल में भी वो शादा नहीं, कहीं का नहीं वो अमल छोड़कर, न पाएगा कुछ इससे मुंह मोड़कर। आगे वो कहते हैं कि नहीं तेरा जग में कोई कारोबार, अमल ही के ऊपर तेरा इख्तियार, अमल जिसमें फल की भी ख्वाहिश ना हो, अमल जिसमें फल की भी ख्वाहिश ना हो, अमल जिसकी कोई नुमाइश ना हो। इसी तरह वो इल्म इरफान ज़ात को बयान करते हैं और उसी के साथ वो मलकुती और शैतानी ताकतों की तक़सीम का फ़लसफ़ा भी बयान करते हैं और इसका सार उर्दू में लिखने में उन्हें 45 अशार लिखना पड़े, तब जाकर हज़रत इंसान की दोनों सिफ़ात लिख पाए। यही वो अहम बाब है जहाँ इंसानियत को मुकम्मल अखलाक का दर्स दिया गया है। खुदाई सिफत के हैं जितने भी गुण, मेरे मुँह से अर्जुन उन्हें आज सुनो। पढ़ा कर मुकद्दस किताबें सदा, रियाजत दयानत से रख वास्ता, निडर बन मगर साफ रख दिल का घर, सदा त्याग कर और खैरात कर, सदा नफ्स को अपने कब्जे में रख, मगर योग को अपने हिस्से में रख। 18वें बाब में निजात का फलसफा बहुमान संन्यास योग में कलम बंद करते हैं और उसका इख्तिताम कर देते हैं। अनवर जलालपुरी लिखते हैं कि सभी धर्मों की एकता, अनेकता, नेकी और सब में एक ही आत्मा को देखने पर जोर देते हुए गीता अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग फर्ज बताती है। गीता के तर्जुमा की जो सबसे बड़ी खूबी नजर आती है और जो कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है वो है इसका आसान और आम फहम होना। इसके लिए अनवर जलालपुरी को बहुत ज़्यादा अशार लिखना पड़े, 701 1761 में बदल गए, लेकिन इसकी वजह से ये हुआ कि गीता उर्दू जानने वाले तबके के लिए बहुत आसान होगी। किसी भी तहरीर का तर्जुमा करना आसान काम नहीं, चाहे कि ऐसी किताब का इंतखाब कर लेना जिसका ताल्लुक अक्सरियत के मजहब से हो और फिर तर्जुमा निगार भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो। देखने में ये बात बहुत खूबसूरत लगती है, बड़ा फख्र महसूस होता है कि हमारे वतन में दिलों में कितनी कुशादगी है कि हमारा मजहब दूसरा है और ज़ेर मुताला दूसरा मजहब है। यकीनन इस बात पर इंबसात महसूस होता है कि यह है हमारी तहजीब, लेकिन गौर किया जाए तो ये काम किसी हम मजहब के लिए करना भी दुश्वार तरीन अमल है। इसकी तरफ किसी और मजहब के शख्स का कदम बढ़ाना ये तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारा मुल्क जिसके बाशिंदे जितनी मोहब्बत अपने मुल्क से करते हैं
उतनी ही वो अपने मजहब, अपनी मजहबी किताबों और अकीदे से करते हैं। एक लफ्ज़, महज एक लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल हो जाए तो यहाँ के मजहबी, जज्बाती और जुनून की हद तक फैसला लेने वाले लोग उस शख्स को तख्ते-ए-दार तक ले जाने के दर पे आ जाते हैं। इसलिए बिलाशुबा ये बेहद मेहनत तलबी नहीं बल्कि दुश्वार तर मरहला था। ये राह बहुत खुशनुमा हमें अब महसूस हो रही है, लेकिन इसके लिए शायर को सख्त ख्वाबों से की राह गुजर से गुजरना पड़ा होगा। अनवर जलालपुरी का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इसका तर्जुमा करते वक्त आप गीनों को ठेस से बचाते हुए पाए तकमील तक पहुंचाया। उनके इस अहम काम का एतराफ़ करते हुए प्रोफेसर रमेश दीक्षित की बात पर मैं अपना मकाला ख़त्म करूंगी कि जिस महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक के तमाम तर्जुमे भारतीय समाज के मुख्तलिफ इदारों के दिग्गजों के लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, स्वामी सहजानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन आदि द्वारा किए जा चुके हैं, उसके निहित अर्थों को कविता की शक्ल में खोलना, संप्रेषणी बनाए रखना निसंदेह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है जिसे अनवर साहब ने पूरी महारत के साथ अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम वक्त में बहुत अहम मकाला पेश किया डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा ने। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मनीष शुक्ला जी से कि आप तशरीफ लाए और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को इतना अहल तो नहीं समझता, लेकिन खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल में तमाम पढ़े लिखे इल्म से जुड़े हुए लोगों के बीच में मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। हमें अभी आगे अपने और लोगों को सुनना है। वासिफ भाई, आपकी इजाज़त। हमने आपको सदर मान लिया हमेशा की तरह। तो मैं बहुत आलिम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मैडम ने इतना खूबसूरत मकाला पढ़ा और बहुत मेहनत से लिखा होगा। ये उस अनवर साहब की उस फील तक, उस रूह तक पहुँची हैं। मैम, आपको बहुत मुबारकबाद। मैं कोई इल्मी बात नहीं कहूँगा, ना ही मैं आलिम हूँ। मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि जब अनवर साहब, मेरा जो मुशायरों से की तरफ मुतवज्जे होने का जो वक्त था, वो एक ज़माना था जब बहुत छोटे थे हम लोग, तब मलिकज़ादा मंजूर साहब की निज़ामत पूरी दुनिया भर में हम लोग मुशायरे को जानते थे कि भाई नाज़िम माने मलिकज़ादा साहब। उसी दौरान थोड़े से वक्फे के बाद फिर अनवर साहब को जब मैंने पहली बार सुना तो मलिकज़ादा साहब सीनियर टाइप के, तो हम सोचते थे हमारे वालिद वाले लोगों के हैं। उनको मैं अपना नाज़िम तस्लीम किया। मैंने क्या शानदार आवाज़, ऐसा एकदम करारा लहजा बोलने का, और इतने खूबसूरत अल्फाज और जिस तरह से चबा के वो करते थे, मैं उनका आशिक हो गया उनकी निज़ामत का। बहुत लड़कपन के ज़माने से 9वीं-10वीं में पढ़ते रहे होंगे। फिर खैर अल्लाह ने इस लायक बनाया कि मैं किसी काम के लायक हुआ। फिर उसके बाद जो शायरी वगैरह का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। मेरी ज़िंदगी का जो पहला अहम मुशायरा था, शायद 2003 या 4 की बात है। सहारनपुर में गुगाल का मेला होता है, बहुत बड़ा मुशायरा, इंडो पाक मुशायरा। अहमद फराज साहब उसमें तशरीफ लाए थे पाकिस्तान से। उसकी निज़ामत वासिफ भाई अनवर साहब ने की थी। मेरा पहला बड़ा मुशायरा, उससे पहले मैं एक आध छोटे मुशायरे में गया था, लेकिन बैनुल-अक़वामी मुशायरा पहला अनवर साहब की निज़ामत में। और बदकिस्मती ये कि जो आखिरी दिल्ली का उनका मुशायरा था, उसमें भी मैं शिरकत कर रहा था बतौर शायर। और फिर वो दिसंबर की कोई तारीख थी, उसके बाद तो फिर वो हादसा ही हो गया जिसमें हम लोग उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से फिर महरूम रहे। तो मैं ये बता रहा था कि जो निज़ामत का है, कल भाई ने मेरे से कहा कि कुछ एक आध कोई जुमला सर के लिए लिखिए, तो मैंने लिखा कि वो अपने आप में निज़ामत का एक मुनफरिद स्कूल थे। सीखे आदमी कोई भी, सब लोगों को उनसे तरबियत हासिल करनी चाहिए। किस तरह की शालीन निज़ामत हो सकती है, हंसी मजाक भी होते थे और इतनी इल्मी बातें, तमाम शेर हम लोगों के बचपन में हम अनवर साहब के जरिए ही हम लोगों तक पहुंचे। इतने उनको शेर याद हुआ करते थे। दूसरी चीज़, भगवद गीता उनका अद्भुत कारनामा है, बहुत कमाल का काम है। भगवद गीता पढ़ना ही मुश्किल, पढ़ने के बाद समझना मुश्किल, समझने के बाद इतना समझ लीजिए कि आप उसको दूसरी ज़बान में दूसरे को समझाइए, और वो भी
नस्र में नहीं, शायरी में अद्भुत है। हम लोग शायरी वारी करते हैं, लेकिन मतलब असंभव काम है जो उन्होंने कर दिखाया है। कमाल, भगवान ने कोई प्रेरणा दी होगी कि जो हमारी हिंदुस्तान की ये जो तहजीब है वो क्या है, वो यही है। मैम ने जिस तरह से भी फरमाया उनके बारे में। और तीसरी चीज कि अगर हमारे बीच में कोई सच में एक हीरो इंटरनेशनल टाइप का आदमी था तो अनवर साहब हुआ करते थे। मेरे को बहुत मौके हुए कि हम उनके साथ बाहर के शहरों में भी तशरीफ ले गए। एयरपोर्ट्स पे तमाम शहर हम लोगों के साथ घूमते रहते थे, किसी को भी दूर से जनता वेव नहीं करती थी। अनवर साहब को देख के पता नहीं कितने लोग वो दूर से दिखाते थे, बड़े छोटे, देखो 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 अनवर जलालपुरी साहब जा रहे हैं। तो मैं सबको कहता था तो मुस्कुराते थे। खैर इतने जमीन से जुड़े हुए आदमी थे कि कभी उन्होंने इसका अपने जहन पे उसको चढ़ने नहीं दिया। मेरे लिए बिल्कुल वालिद जैसे थे, जब उनकी हर वक्त मेरे लिए सरपरस्ती मुझे मैसर हुई, मेरी पसीराई भी हुई उनके द्वारा। और आज ये जो प्रोग्राम आज इनकाद किया गया है, ये सब आप लोग बहुत बहुत तारीफ के मुस्तहक हैं। भगवान करे ऐसे ही सब आप सब सलामत रहें और हम इतनी खूबसूरत शख्सियत को, वाकई इतना बड़ा कद अब लगता है कि ये कितने बड़े आदमी थे, हम लोगों के साथ थे। वो सारी जब दूर हो जाता आदमी तब उसकी कीमत समझ में आती है। खूबसूरत शख्सियत, मोहब्बत से लबरेज, क्या क्या कहूँ मैं, अभी घंटों बोल सकता हूँ। सच बात ये है कि अगर आप मुझे 1-2 घंटे का टाइम दे दीजिए, अल्लाह का समय बोलता रहूंगा अनवर साहब के बारे में। बस दुआ ये है कि जहाँ हूँ अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम लोग कुछ ऐसा कर सकें। उनके जानिसार सब बैठे हैं यहाँ पे और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वो जो उनकी फील थी, जिस वजह से उन्होंने गीता लिखी, उसे हम सब लोग जी के दिखाएं। तब तो बात है, वरना सेमिनार वगैरह करके यहाँ अखबार में छप के इसको अपने दिल पे लेके जाएं। अनवर साहब को अपने याद रखें और दुआ करते रहें। क़यामत तक इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी। अगर तुम आसमान पे जा रहे हो, शौक से जाओ, मेरी मंजिल, अगर तुम आसमां पर जा रहे हो, शौक से जाओ, मेरे नक्शो कदम आगे की मंजिल का पता देंगे। इन अशार के साथ मैं अब दावत देता हूँ डॉक्टर एहतशाम अहमद खान साहब से कि आप तशरीफ लाए और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर एहतशाम अहमद खान साहब, हेड अमेरिकन इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब। शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब वासी फारूकी साहब, मनीष शुक्ला जी, इशरत नाई साहब, आतिफ हनीफ साहब और इस आज की खूबसूरत शाम के रूह रवां हर्षवर्धन जी को मैं बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत मजलिस सजाई, शायद जिसकी ज़रूरत भी थी और जो बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। एक ऐसा नाम अनवर जलालपुरी साहब, जिसको दुनिया कई पहलू से जानती है। दोस्तों, एक दिन या एक मजलिस में उनके मुतालिक बातें करना या समेटना शायद मुमकिन नहीं। उनकी खिदमत का अगर एतराफ़ करना हो तो शायद कई हज़ार सफ़हात सियाह पर जाएं, लेकिन उनकी खिदमत आप समेट नहीं सकते। अभी मनीष शुक्ला जी ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। उनका जाना यकीनन हमारे लिए बहुत ऐसा खला पैदा हो गया जो शायद आने वाले वक्त में कोई पूरा न कर सके। लेकिन ऐसी जो शख्सियतें होती हैं वो जाती नहीं हैं। उनके नक्शे पा अगर हम देखें तो हमें चारों तरफ दिखाई देंगे। जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, खुसूसन
جس کا ذکر کر رہے تھے گیتا کے حوالے سے، یعنی ہندوستان کی روح کو انہوں نے اپنی تخلیقیت کے جادو سے تمام ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا، اور خصوصاً ان ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا جو شاید اس مقدس کتاب کی روح تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے نستعلیق میں یا اردو شاعری کے فارم میں گیتا کو جس طریقے سے پیش کیا وہ شاید دوبارہ نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال یہ گفتگو کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے، میں نے کچھ اپنے جذبات قلم بند کیے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں، مشکل سے 5-7 منٹ میں اس کو ختم کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو ہندوستانی بھاشا میں لکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ LPU ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے جو اراکین ہیں وہ ہندوستانی زبان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہندی کے الفاظ بھی آئیں، اردو کے الفاظ بھی آئیں، تاکہ دونوں کی خوبصورتی برقرار رہے۔ لیکھنی بھاشا کا ایک اہم اور بہت ہی خاص حصہ ہے۔ ایک سفل لیکھک اور کامیاب شاعر اپنی لیکھنی یا تحریر میں بھاشا سے چترکاری کا کام لیتا ہے، لیکن اپنی آواز سے حیات و کائنات کی تصویر بنانے کا فن اگر کسی کو قدرت نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ بخشا تھا تو یقیناً پدم شری انور جلال پوری تھے۔ ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جو کسی خاص فن یا کلا کے ساتھ ایسے مشرت ہو جاتے ہیں کہ جب بھی اور جہاں بھی اس کلا یا فن کا ذکر ہو ان کا ویکتتو سوتہ سننے والوں کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح شعر و سخن اور مشاعرے کا ذکر ہو اور انور جلال پوری کا نام نہ آئے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ مشاعرے کی دنیا میں اپنی پرکیف آواز سے شروتاؤں کے سماعت میں سرور گھولنے کا فن انور جلال پوری سے بہتر شاید نہیں ملے گا۔ اتر پردیش میں امبیڈکر نگر کے ضلع قصبہ جلال پور میں پیدا ہونے والے انور جلال پوری کے ویکتتو کے کئی پہلو ہیں۔ ایک ساتھ کسی انسان میں اتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، اس کا اندازہ انور جلال پوری کی شخصیت کو دیکھ کر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ انترراشٹریہ خیاطی پراپت اردو کبھی ایوم شاعر، منچ سنچالک، بہترین ٹی وی سیریل سمواد ایوم گیت لیکھک، شکشاوید، بدھی جیوی اور سب سے بڑھ کر ایک بہترین انسان تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو انسانی جذبات کی عکاسی، پریم، پراکرتک ادارتا اور آدھیاتمکتا جیسے وشیوں پر کیندرت کیا ہے۔ ان کی شاعری میں منس کی بھاوناؤں کی مہتوپورنتا کو جکڑ لینے کی اپار چھمتا تھا۔ پدم شری انور جلال پوری اپنے سادہ اور سرل مزاج کے لیے بھی وکھیات تھے۔ کسی طرح کی بناوٹ سے وہ کافی دور رہے۔ ان کے جذبات نہایت صاف اور پاکیزہ تھے۔ وہ محبت اور پریم کے سفیر تھے اور اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سماج میں اب آپسی سوہاد مضبوط ہو اس کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہے۔ انہوں نے اپنی لیکھنی اور واणी سے سماج کو قریب لانے کا کام کیا، جس کی زندہ مثال دھارمک گرنتھ شریمد بھگوت گیتا کا اردو شاعری میں انواد ان کا اہم کارج ہے، جس کے ذریعے انہوں نے دو مذہبوں کے بیچ کی کھائی کو پاٹنے کا کام کیا ہے۔ ان کی شاعری میں قومی یکجہتی، انسان دوستی، بھائی چارہ اور پیار محبت کا پیغام واضح طور پر ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نفرت مٹانے اور محبت کو پھیلانے کا کام کیا ہے۔ وہ اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے ہمیشہ وطن عزیز کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ آؤ پھر عہد کریں دیش کی رکشا کے لیے، آؤ پھر عہد کریں دیش کی رکشا کے لیے، آؤ پھر عہد کریں امن و اہنسا کے لیے، مادر ہند کی یکجہتی و ایکتا کے لیے عرصہ زیشت بشر تنگ ہونے نہ دیں گے۔ انور جلال پوری جیسی سپرسدھ ہستیاں سماج اور زمانے کو دوبارہ نہیں ملنے والی ہیں۔ ہماری نسل کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نے پدم شری انور جلال صاحب کو نہ صرف دیکھا، سنا اور پڑھا ہے، بلکہ ان کے قریب رہنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آج جب ہمارے سماج میں انسان اپنی ذات اور دھن کے حصار میں قید ہوتا جا رہا ہے، آپسی سوہاد، محبت سماپت ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں پدم شری انور جلال پوری کی شکشا کو یاد کرنا بے حد اہم اور ضروری ہے۔ کچھ اشعار ان کے پیش کر رہا ہوں۔ ہر دم آپس کا یہ جھگڑا، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ،
हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, एक खुदा के सब बंदे, एक आदम की सब औलाद, एक खुदा के सब बंदे, एक आदम की सब औलाद, तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगाकर देखो। अनेकता में जहां एकता मिली अनवर, बहुत ही मशहूर शेर है उनका, अनेकता में जहां एकता मिली अनवर, हम उस दयार को हिंदुस्तान कहने लगे। और आखिरी मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करता हूँ कि मेरी बस्ती के लोगों न रोको रास्ता मेरा, मेरी बस्ती के लोगों न रोको रास्ता मेरा, मैं सब कुछ छोड़ कर जाता हूँ, देखो हौसला मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ मेरा इंतजार मत करना, मेरे लिए कभी दिल सोगवार मत करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतशाम अहमद खान साहब। और मैं जो है हेल्प यू ट्रस्ट के श्री हर्षवर्धन जी के लिए जोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें। इसलिए इस्तकबाल करें कि जो काम जो है साहित्यकारों का, हम लोगों का सबका है, वो काम आप कर रहे हैं और अभी बहुत सारी बातें हो चुकी है। बहरहाल तालियों के साथ हौसला अफजाई करें ताकि आगे भी इस तरह से और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो बिना किसी ताख़ीर तमहीद के। मैं जनाब आतिफ हनीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आतिफ हनीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त काफ़ी हो चुका और काफ़ी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कि 5 मिनट में अपनी बात जो है आप लोगों के सामने रखूँ और कुछ ऐसी बात रखूँगा जो शायद यहाँ पे बात नहीं करी गई है। मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है अनवर भाई के साथ में और ज़ाहिर बचपने में सुनते रहते थे मुशायरों में, फिर यूट्यूब का ज़माना आया उस पर सुनने लगे। लेकिन जो बाकायदा पहला आप कह सकते हैं इंटरेक्शन हुआ 2013 में हम लोगों ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया था और उसमें निज़ामत जो थी वो अनवर भाई ने करी और उस वक़्त फिर मुलाकातों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद जब अनवर भाई ने गीता का ये काम शुरू किया तो उस वक़्त मुलाकातों का सिलसिला जो था वो बहुत अहम था और उनके साथ काफ़ी हम लोग बैठते थे, बातचीत होती थी, ये सिलसिला कैसे चल रहा है, क्या क्या तर्जुमे हो रहे हैं। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है, मैं इस चीज़ को अपने सीने से लगा के रखता हूँ कि ये जो किताब आज जिसका जिक्र हो रहा है, मैं देख रहा था ये किताब यहाँ पे किसी ने यहाँ पे दिखाई नहीं, जबकि ये किताब यहाँ लोगों के सामने होनी भी चाहिए थी। हर्ष भाई मेरा आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी है क्योंकि आप माशाल्लाह इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि ये किताब इस तरह के प्रोग्राम्स में रहनी चाहिए ताकि जो जिक्र हो रहा है वो लोगों तक किताब पहुँचे। तो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि इस किताब के बारे में और अनवर भाई के बारे में लिखने का, ये पीछे जो इस किताब पे लिखा है मैंने कोशिश करी। और अनवर भाई ने इस वक्त बहुत सारे हमें मशवरे दिए, हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया था, बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर इस तरह की चीज़ों का अंग्रेज़ी तर्जुमा हो जाए तो ये काम उन्होंने मेरे जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैंने इस पर हामी भी भरी थी कि बिल्कुल इसको कंप्लीट करने के बाद इसके अंग्रेज़ी तर्जुमे जो है वो मैं कर दूंगा। लेकिन वक्त ने और ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया और ये सिलसिला जो है वहाँ पे रुक गया। दूसरी 2-3 बातें और जो मुझे अहम लगती हैं जो शायद यहाँ पे हुई हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक शख्स अगर कोई काम करता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अनवर भाई की जो शख्सियत है वो मल्टी टैलेंटेड है, ये सबसे अहम चीज़ उसमें निकल के आती है। अगर हम बतौर शायर देखते हैं तो अगर हम रेख्ता की साइट पे देखें तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा शायर वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें कितने ऐसे शायर होंगे जिनको पद्मश्री मिला होगा, कोई ऑडियंस में मेरे ख्याल से शायद 50 भी नहीं होंगे 5000 में, अगर मैं पुराने लोगों को छोड़ दूँ, और 50 भी शायद हो सकता है बहुत बड़ा नंबर हो, मुश्किल से शायद मेरे ख्याल से 15-20 ऐसे लोग होंगे। और उसमें ये जो काम है ये अपने आप में जाहिर है जिसपे बहुत सारे लोगों ने रोशनी डाली, बहुत बड़ा काम है और बहुत ही नुमाया काम है। सबसे पहले तो इतनी हिम्मत करना कि इस तरह का कोई काम, जैसे कि लोगों ने भी जिक्र किया, ये बहुत मुश्किल काम है कि जहाँ ज़बान जो है, हाँ मोबाइल की वजह से हो सकता है कि सबसे पहले तो ये हिम्मत करना बहुत मुश्किल काम है कि इस तरह का कोई काम जो है वो किया जा सकता है कि एक इतनी अहम किताब उसको आप दूसरी ज़बान में तर्जुमा भी कर रहे हैं और शायरी में भी कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे हिम्मत की बात है। और कहीं मेरे ख्याल से माइक को भी पता चल गया है कि वक्त जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है।
अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। वही मैंने कहा शायद माइक और साउंड सिस्टम और ये ऑडिटोरियम को भी पता चल गया है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह के काम सबसे पहले ये हिम्मत करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी शख्स ने हिम्मत करी, ये सबसे अहम चीज़ है। और जो अभी यहाँ पे जिक्र हुआ है अहमद फराज साहब का, उनका एक शेर है मुझे बहुत मशहूर है, बहुत मुझे पसंद भी है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते रहते। तो बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें सोचते हैं, हज़ारों लोग, लेकिन उसमें चंद गिनती के कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कुछ काम कर पाते हैं। तो उसी फहरिस्त में जो सबसे नुमाया काम है वो अनवर जलालपुरी साहब का। आखिरी एक बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, ये उन्हीं के अल्फाज है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने एक मुशायरे में निज़ामत में इसको इस्तेमाल किया था। और बल्कि फिर आपने भी एक शेर इस तरह से कुछ कहा है कि आने वाली नस्लें तुम पे फ़ख्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पे फ़ख्र करेंगी हम असरों, जब उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो हम लोगों को ये फ़ख्र हासिल है कि हम लोगों ने अनवर भाई के साथ जो है वो वक्त गुजारा है। और हम अपनी अगली नस्लों को जब ये बताएंगे, आज से ज़िंदगी अगर साथ देगी 10, 20, 50 साल बाद कि हमने अनवर भाई के साथ जो है वक्त गुजारा है, और ऐसा आदमी जिसने इतना तारीख़ी काम किया और वो तारीख़ी काम लखनऊ की सरज़मीन से हुआ है, तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और आखिर में मैं बहुत मुबारकबाद उनके बेटों को और हेल्प यू ट्रस्ट को और हर्ष भाई को देना चाहूँगा कि ये सिलसिला जो है उन्होंने कायम रखा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ दुनिया में मुश्किल से 1 साल नहीं गुजरता है और हमने कोरोना और पिछले 4-5 साल में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को खोया, लेकिन 1 साल बाद हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला मैं देख रहा हूँ ये मुस्तकिल चल रहा है, और ये हेल्प यू ट्रस्ट की कोशिशें हैं, उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, उनके चाहने वाले, इतनी देर हो गई तब भी इस ऑडिटोरियम में इतने लोग हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम लोग जो उनकी गंगा जमनी तहजीब के जिसके वो आप कह सकते हैं एम्बेसडर थे, हम आज भी उसको बढ़ाना चाहते हैं और हमारे दिल में वो चीज़ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी साहब। अहले कलम आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलकते लौह कलम बांट रहा हूँ। और अब सबसे आखिर में मैं जनाब वासिफ फारूकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अनवर जलालपुरी साहब भी नाज़िम मुशायरा थे और वासिफ फारूकी साहब भी नाज़िम मुशायरा हैं। ख्यालात का इजहार। हयात और मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। हयात और मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में, उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। भाई हर्षवर्धन अग्रवाल जी, बिरादर अजीज़ आतिफ हनीफ साहब, डॉक्टर एहतशाम साहब, मुहतरमा इशरत नाही साहिबा, और आज के सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली शख्सियत डॉक्टर मसीहुद्दीन खान साहब, मेरे भतीजे शहरयार, शाहकार और जानिसार तीनों मौजूद हैं यहाँ। हर्षवर्धन साहब ने ये बहुत कई प्रोग्राम उनके सिलसिले के किए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी हजरात मौजूद हैं या जितने लोगों ने उनके सिलसिले की गुफ्तगू की है, सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी का अनवर साहब के साथ रहा है तो वो साथ मैं खुद हूँ। मुझसे ज़्यादा साथ किसी का नहीं रहा होगा। कितनी शब्बेदारियाँ हमारी उनके साथ हुई, कितने मुशारों के सफ़र हुए, बिल्कुल मुझे जहन में नहीं है कि मैं उसकी कोई तरतीब बता सकूँ आपको। लेकिन मुझे याद है कि 1978 तकरीबन 40 बरस स्टेज पर उनका मेरा साथ रहा। 1978 में पहली मरतबा एक मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे थे वो, और उसमें उन्होंने ऐलान किया था, बिल्कुल नए नए आए थे उस ज़माने में, शायद 76-77 में उन्होंने निज़ामत के तौर नाज़िम के तौर पर एक शोहरत हासिल करने का सिलसिला शुरू किया था। तो 78 में मजाज डे का एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था मजाज के वतन रोनी में। उसमें पहली मरतबा अनवर साहब को बासियत नाज़िम बुलाया गया था। इत्तेफाक से खुशनसीबी मेरी थी कि मैं भी, हालांकि अनवर साहब मुझसे सीनियर थे और मेरे ज़माने के ही अलीगरियन थे वो। मेरे ज़माने में डॉक्टर बशीर बद्र साहब और अनवर जलालपुरी ये दोनों अलीगढ़ में पढ़ते थे। मैं जूनियर था, मेरी लाइन भी बिल्कुल अलग थी। मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और अनवर साहब अंग्रेज़ी के तालिब इल्म थे। तो उसमें निज़ामत में उन्होंने पहली मरतबा मुझे बात शायर
सुना भी और उनसे मुलाकात भी हुई। उसके बाद तो ताल्लुक़ इतना पुख्ता हो गया कि मैं उसकी तफसील क्या बताऊँ। 1982 की बात है, ये बिल्कुल एक ऐसा राज है जो मैंने शायद आज तक किसी को नहीं बताया, ये इनके बेटों को भी इल्म नहीं होगा जो बताने जा रहा हूँ। 1982 में डॉक्टर राहत इंदौरी उस वक्त तक बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे। अनवर जलालपुरी ने उनको बाकायदा प्रेस करके उनको मजबूर किया कि तुम यहाँ आओ, और अनवर जलालपुरी साहब ने उनको रखा अपने घर जलालपुर में। ये कहा कि यहाँ रह के तुम पढ़ो, और यहाँ से अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से उनको एमए करवाया। ये तहरीक जब हुई और वो कामयाब हो गए, तो मैं और शायर जमाली, ये दो लोग थे। शायर जमाली और ने कहा मुझसे, कहने लगे यार वो ये तो फायदा उठा लिया राहत ने, अनवर जलालपुरी ने उनका साथ दे दिया। तो हमने कहा कि इसको जरूरी थोड़े कि अनवर भाई सबका साथ दे, आप क्या चाहते हैं? कहने लगे मैं भी ये करना चाहता हूँ और अवध यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं अकेले नहीं करने दूंगा। मैं इंजीनियरिंग का तालिब था शायर जमाली साहब के साथ। मैंने अनवर भाई से कहा, मैंने कहा शायर भाई और हम दोनों लोग एमए करना चाहते हैं उर्दू में, हालांकि कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने से, इतने आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। तो कहने लगे नहीं, अगर ऐसा इरादा है आपका तो आइए, इस्तकबाल। और अनवर भाई की तहरीक पर मैंने और शायर जमाली ने भी अवध यूनिवर्सिटी से एमए एक साथ किया। ये तो ये उर्दू की तालीम जो थी ये अनवर भाई के तुफैल हासिल हुई। और राहत साहब को तो राहत बनाने वाले, हाँ मैंने तो बताया। अच्छा, नाजिम के सब लोग सुनते हैं, नाजिम किसी की नहीं सुनता। राहत के बारे में ही तो ये मुझे अर्ज़ ये करना है कि वो तालीम के सिलसिले में खास तौर पर बड़ी तरगीब दिया करते थे, बड़ी तरकीब किया करते थे और चाहते थे। अभी मुझसे कुछ दिन पहले की बात है, उनके इंतकाल से चंद महीने पहले की बात है, उन्होंने मुझसे कहा था कि यार आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप मुशायरों की एक दास्तान किताब की शक्ल में लाइए, क्योंकि आपके पास बहुत तजुर्बा है। तो मैंने कहा काम तो आपने अच्छा बताया, लेकिन ये काम मेरे लिए आसान नहीं है। कल ये नहीं, जिस दिन आप कलम उठा लेंगे मैं समझता हूँ कि ये काम आसान हो जाएगा। तो ये जो शहरियार इन्होंने जानिसार ने उनकी नस्ल की एक किताब मुरतब की है, जिसके मुरतब उनके बेटे हैं, उसमें मेरा एक मजमून भी शामिल है। तो मैंने उस मजमून में एक बात लिखी थी, वो बात पूरी तो हुई लेकिन बहुत बाद में हुई, उनके इंतकाल के बाद हुई। मैंने उसमें ये लिखा था कि अनवर जलालपुरी हिंदुस्तान के मैंने तो मेरी खुशनसीबी ये है कि मैंने नसीम कुरैशी जो अलीगढ़ के प्रोफेसर थे, उसके बाद हज़रत उमर कुरैशी, उसके बाद डॉक्टर मलिकज़ादा मंसूर अहमद साहब और अनवर जलालपुरी और सकलैन हैदर जैसे बड़े नाज़िमों को अपने सामने देखा भी है और उनकी निज़ामत में शेर पढ़ने का शरफ भी मुझे हासिल है। ये तो है अपनी जगह। लेकिन एक बात मैंने लिखी थी अनवर साहब के बारे में, अनवर साहब भाई से कहा था मैंने कहा हमारी शायरी की दुनिया में पद्मश्री बेकर उस्ताही साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना एक एक मुशायरा कलमबंद किया है। उनकी डायरी में सब लिखा हुआ था कि वो कहाँ गए, और अगर वो मुशायरा नहीं भी हुआ या प्रोग्राम मुलतवी हो गया तो उसकी भी तफसील उसमें मौजूद थी कि वो प्रोग्राम नहीं हो सका। तो मैंने कहा बेगर साहब ने इस काम किया है तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आप हिंदुस्तान के ऐसे नाज़िम मुशायरा हैं जो आप यकीनन मलिकज़ादा साहब से जूनियर हैं, आप यकीनन उमर कुरैशी साहब से जूनियर हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मुशायरों की निज़ामत इन दोनों में से किसी ने की ही नहीं है। अगर इसकी कोई तफसील आपके पास मौजूद हो तो आप सबसे पहले ये क्लेम कीजिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दावा कीजिए आप कि इस बात पर आपको गिनीज बुक में शामिल होना चाहिए कि एक टाइप के प्रोग्राम, एक किस्म के प्रोग्राम सबसे लंबे पीरियड तक अगर किसी ने उनको कंपेयर किया है, उनकी निज़ामत की है, तो तन्हा नाम अनवर जलालपुरी का है। लेकिन अनवर भाई कहने लगा इस तरह की कोई तफसीलात मैंने तो अपने पास नहीं रखी। मैंने कहा अगर रखी होती तो होता, तो मैंने उस मजमून में लिखा भी था ये, और कि उनको गिनीज बुक में होना चाहिए था और सरकारी सतह पर उनका एजाज़ ये होना चाहिए था अनवर साहब का इस कारनामे के तौर पर। उस वक्त तक ये जो उर्दू शायरी में गीता उन्होंने मुरतब नहीं की थी, उन्होंने नहीं कहा था। उस वक्त मैंने एक मजमून में लिखा था कि उनको पद्मश्री कम अज़ कम हुकूमत की सतह से पद्मश्री मिलना चाहिए, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश थी और दिल की आरज़ू थी कि उनको पद्मश्री मिले, लेकिन बहरहाल को उनकी ज़िंदगी में नहीं मिल पाई। 2018 की वो मनहूस तारीख जब ब्रेन स्ट्रोक की खबर मुझे मिली है, मैं अमरोहा के एक मुशायरे में निज़ामत कर रहा था खुद, उस वक्त फ़ोन गया, पता ही चला कि अनवर साहब को हो गया। मैंने बाकायदा मुशायरे में ऐलान किया इस सदमे का,
اور بہت پریشان ہوا ذہنی طور پر، تو وہاں مکمل طور پر دعا کروائی گئی صاحب انور صاحب کی صحتیابی کے لیے، لیکن 4-5 دن صرف وہ اپنی زندگی اور اپنے مرض سے جنگ ہار گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے خراج عقیدت کے طور پر شاید میں پہلا ان کا دوست یا ان کا بھائی یا ان کا ساتھی ایسا ہوں جس نے اسی تاریخ کو 2019 میں انور صاحب کی یاد میں ایک بہت ہی خوبصورت ان کی تعزیتی نشست نہیں کی تھی، ان کے بہت اچھا سا ایک پروگرام میں نے آرگنائز کیا تھا جس میں بہت سے ایسے شاعر جو بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں، جس میں انور بھائی کے متقدین بھی تھے، جوہر کانپوری اور شبین ادیب اور شیر سنگھ بشر، یہ سارے لوگ ایک آواز سے میری آ گئے، شہریار اس میں موجود تھے، اور اس میں یہ جانثار صاحب اور ہمارے شاہکار یہ دونوں اتفاق سے اس میں نہیں پہنچے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس پروگرام میں اگر بھابھی ہماری چلی آتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ایک عجیب سی صورتحال یہ ہوئی کہ ایک صدمہ انور بھائی کو اس دنیا سے دے گیا، حالانکہ زندگی جس کی جتنی ہوتی ہے، جتنی سانسیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ وہ سانس نہیں لے سکتا، لیکن وہ ان کی بیٹی کا رخصت ہونا، اور ایسا حادثہ تھا وہ کہ یہاں تھی بھی نہیں، لندن انگلینڈ میں تھی ان کی شہزادی، ان کی اکلوتی بہن، ان کا انتقال نے توڑ کے رکھ دیا تھا انور جلال پوری کو۔ انور بھائی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو انور بھائی نے ایک جملہ مجھ سے کہا، میں نے کہا اچھا وہ واصف بھائی ہی کہتے تھے، کبھی میرا انہوں نے تنہا نام نہیں لیا، مجھ سے کہتے ہیں واصف بھائی میں تو باہر نکلوں گا، لوگوں سے ملوں گا، مشاوروں میں جاؤں گا تو میرا ذہن دوسرے معاملات میں سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن میں بہت پریشان ہوں۔ حجین کہتے تھے اپنی اہلیہ کو، ان کی والدہ کو، کہتے تھے میں بہت پریشانی ہوں کہ حجین کی زندگی کیسے کٹے۔ حجین آج بھی سلامت ہے، اللہ ان کی ان کو برکت دے، بھابھی ہماری صحت مند رہے، وہ آج بھی سلامت ہے، اور وہ غم اپنی بیٹی کا لے کر اس قدر شدید غم تھا ان کو کہ وہ وہاں سے آتے ہیں جلال پور سے 40واں کر کے بیٹی کا اپنی، اور یہاں آنے کے بعد باتھ روم میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، اس وقت نہانے کا پتہ نہیں کیوں ان کو معاملہ ہوا، اور وہ نہا بس اسی وقت برین اسٹروک ہوتا ہے ان کو، اور وہ اس دنیا سے چلے جاتی ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، لیکن ایسے نہیں جانا چاہیے جس طرح انور جلال پوری چلے گئے۔ آج تک ہم کو یہ احساس نہیں ہو رہا، چاروں طرف تصویریں ہیں ان کی، میں نے صاحب کو دیکھ کے ان کی آواز جو پہلا جملہ وہ پہلا لفظ بولا کرتے تھے مائک پہ آنے کے بعد، صدر محترم، اس صدر محترم کی کھنک پورے مشاعرے کو اپنا اسیر بنا لیتی تھی، ایک ایک سماج ان کی گرفت میں آ جایا کرتی تھی صرف ایک لفظ سے۔ اس کے بعد اتنی کھنکدار آواز، اس قدر موضوعاتی جو گفتگو کرتے تھے ان سے بہتر تمہیدی تقریر مشاعروں میں کسی ناظم نے کی ہی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جس موضوع پر مشاعرہ ہوتا تھا، جہاں مشاعرہ ہوتا تھا، جن حالات میں مشاعرہ ہوتا تھا، اس کی اتنی تفصیلی گفتگو انور صاحب کیا کرتے تھے کہ اس کا ایک ایک لفظ لوگوں کو کانوں میں شہد کی طرح محسوس ہوتا تھا، کانوں شہد بولنے کا عمل ہوتا تھا۔ اللہ آج ان کے 76واں یوم ولادت ہے، تو اور یہ تعزیتی پروگرام بالکل نہیں ہے، تو اس لیے بہرحال اس کے باوجود وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اسی طرح وہ ہمارے درمیان رہ سکتے ہیں جیسا کہ ان کا اپنا شعر کئی مرتبہ مسعود الدین صاحب نے کوٹ کیا۔ ہرش وردھن بھائی کو میں خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری ادبی دنیا کے، ہماری اردو دنیا کے ایک ایسے لیجنڈ کو انہوں نے زندہ رکھنے کا عہد کر دیا ہے جس کا نام انور جلال پوری ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے سلسلے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا دیا، بہت بہت شکریہ نوازش۔ بہت بہت شکریہ واصف فاروقی صاحب۔ برین اسٹروک ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ حرمین ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، اور ہرش وردھن جی نے کافی جو ہے اس سلسلے میں میڈیکل کالج میں، کیونکہ برابر میں بھی کانٹیکٹ میں تھا، پروفیسر شاعر الدولوی صاحب کا میسیج گروپ میں آتا رہا کہ دیکھیے معلوم کیجئے کیا ہوا، پرویز ملک زادہ صاحب کا بھی میسیج آتا رہا، سبھی لوگوں کا۔ اس میں ہرش وردھن جی نے بہت اہم رول ادا کیا ہم لوگ کی سب کی طرف سے، اردو دنیا کی طرف سے اور ادب کی طرف سے، کہ برابر آخر تک لگے رہے اور علاج ہوتا رہا۔